will do the definition of natural embedding. What is natural embedding? We have already defined a mapping pi from x to x double star, which is 1, 1 and onto, right? So isometric isomorphism mapping है. इसी mapping का नाम है natural embedding. क्या नाम है इसका? Natural embedding. और एक और नाम है इसका canonical mapping, right? From x to the second dual space x double star, right? So what does it mean? It implies a functional phi x. अब जब आपने एक मैपिंग बनाई यहाँ पे, ये पाई है, ये x है, दिस इज x डबल स्टार. यहाँ से x से एक आपके पास क्या आया? एक फंक्शनल आया. तो वो कह रहे हैं कि द फंक्शनल, ऑलरेडी वी हैव प्रूव दैट ये फंक्शनल है. द फंक्शनल phi x belongs to x double star is called the, इसको कहते हैं फंक्शनल इंड्यूस्ड बाय द वेक्टर x. ये मैपिंग को आइसोमेट्रिक आइसोमॉर्फिज्म प्रूव करने का क्या मतलब है बेटा? कि एवरी पॉइंट, एवरी वेक्टर इन x गिव्स राइज टू अ फंक्शनल phi x इन x डबल स्टार. कि हर एक वेक्टर जो है वो फंक्शनल को कहते हैं जन्म दे रहा है, इंड्यूस, या एंड इन अदर वर्ड्स द phi x इज इंड्यूस्ड बाय द वेक्टर x. सो दिस फंक्शनल इज कॉल्ड इंड्यूस्ड फंक्शनल्स. This kind of functionals are called induced functionals, right? So I hope कि what is natural embedding, इस mapping का नाम ही क्या है? Natural embedding है, right? So अब next definition है reflexive space. रिफ्लेक्सिव स्पेस. रिफ्लेक्सिव का क्या मतलब है? वैसे अगर हम सिर्फ नाम पे जाएं, अगर इसके मैथमेटिकल डेफिनेशन पे बाद में जाते हैं, सो रिफ्लेक्सिव का मतलब है कि उसकी रिफ्लेक्शन, राइट, कि एग्जैक्टली वैसा ही हमें नजर आ रहा है. तो अगर हमारे पास एक नॉर्म स्पेस x है, इफ यू हैव अ नॉर्म स्पेस x, दिस इज अ नॉर्म्ड लीनियर स्पेस, राइट. एक्चुअली हम जितना भी काम कर रहे हैं नॉर्म लीनियर स्पेस में कर रहे हैं. So this is said to be reflexive. इस स्पेस को हम reflexive कब कहेंगे? This is said to be reflexive if the natural embedding pi, ये natural embedding है pi, natural embedding pi, कहाँ से कहाँ? From x to the dual space x double star. और ये मैपिंग क्या है बेटा? On to मैपिंग है. तो जब मैपिंग on to हो जाती है, अदरवाइज बेटा, अदरवाइज क्या होता है? देखो, अगर एक मैपिंग आप लेते हैं ना f of x from x to y, तो आप लिखते हैं f of x is contained in y. f of x is equal to y तभी लिखा जाता है जब f क्या होता है? onto. अब ये जो नेचुरल एम्बेडिंग है ये एक onto मैपिंग है from x to x डबल स्टार, ठीक है. तो क्या होगा? तो इस केस में पाई ऑफ x किसके बराबर हो जाएगा? x डबल स्टार. So therefore, if any mapping, natural embedding, which satisfy this condition that the image of x under pi is equal to the second dual space, then that non-linear space is said to be a reflexive space, right? So it implies when x is reflexive, if there exists a natural embedding pi from x to x double star, which is isomorphic to x double star, therefore x is called reflexive. तो इसका मतलब किसी भी स्पेस को बेटा आपने रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है तो आप क्या करेंगे? एक मैपिंग, अब मान लो मैंने r raised to power n को अगर रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है तो क्या करेंगे? हम एक मैपिंग बनाएंगे पाई फ्रॉम कहां से कहां? r raised to power n to r raised to power n double star, r raised to power n to r raised to power n डबल स्टार, ठीक है जी. सो अगर ये मैपिंग, अब ये मैपिंग अगर आइसोमेट्रिक आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगी तो वो फंक्शन क्या बन जाएगा? तो इसका मतलब ये जो स्पेस जो है, अगर हम प्रूव कर देंगे कि इनके बीच में 1 1 on to और नॉन प्रिजर्विंग मैप, ये सारा कुछ एग्जिस्ट कर रहा है, इट मींस दिस स्पेस विल बिकम द व्हाट स्पेस? दिस स्पेस विल बिकम द रिफ्लेक्सिव स्पेस, राइट. So let's do some examples of the reflexive space.
Examples of a reflexive space. Examples of reflexive space. अब r raised to power n. Beta, you have already know what is r raised to power n star. The dual space of r raised to power n is r raised to power n. Then what is the double dual space of this? This is Rn star, which is equal to r raised to power n. Clear? So it implies आपके पास क्या आ गया? R raised to power n किसके बराबर आ गया? Rn double star के बराबर. It implies R raised to power n is a, ये directly हो गया. It is a reflexive space. This is a reflexive space. Next example है, every finite dimensional norm space is reflexive. Every finite dimensional norm space is reflexive. So कैसे बेटा आप प्रूव करेंगे कि every finite dimensional norm space is reflexive? देखिए इसका सॉल्यूशन क्या है. Let capital X be a n-dimensional norm space. ठीक है जी. Then beta we have a result that dimension of x is always equal to dimension of x star. ठीक है जी, which is equal to dimension of x double star. So अगर x ही फाइनाइट डायमेंशन है तो चाहे मैं ड्यूल स्पेस की डायमेंशन देख लूं या सेकंड कॉन्जुगेट स्पेस की डायमेंशन देख लूं, ये सारी क्या हो जाएंगी? सेम हो जाएंगी. ठीक है. नाउ द नेचुरल एम्बेडिंग pi from x to x double star defined as pi of x is equal to phi x. हमें पता है ये फंक्शन क्या है? इंजेक्टिव है बेटा. दिस फंक्शन इज इंजेक्टिव का मतलब ये हमें पता है ये 1 1 है. बेटा रिफ्लेक्सिव के लिए आपको ये मैपिंग प्रूव करना है, ये ऑन टू होनी चाहिए. ठीक है. आइसोमेट्रिक आइसोमॉर्फिक तो है, ये सिर्फ अगर ऑन टू की कंडीशन साइड में सेटिस्फाई हो जाती है तो वो जो स्पेस है वो क्या बन जाती है? रिफ्लेक्सिव बन जाती है. सो दिस इज 1 1. ठीक है जी. And x is n-dimensional. And x is n-dimensional, right? It implies the range pi of x is n-dimensional. The range pi of x is also n-dimensional, right? But pi of x क्या है? Pi of x is a subspace of, the second conjugate space x double star, right? It is a, pi of x is always contained in x double star. But वैसे भी it implies pi of x is equal to x double star. Actually थ्योरम में क्या कहा है कि अगर एक फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस थी, ये देखो, अगर ये फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस है, मैपिंग डिफाइन की यहाँ x और यहाँ है x डबल स्टार. ठीक है. अब ये क्या है? एन डायमेंशन. हमने कह दिया कि अगर x एन डायमेंशन इट मींस x डबल स्टार x स्टार ये भी क्या होंगी? एन डायमेंशन ही होंगी. अब हमने एक मैपिंग डिफाइन की यहाँ से यहाँ और ये बनती है फाई ऑफ x और ये मैपिंग क्या है? 1 1 है. Then we have a result कि अगर मैपिंग 1 1 है, नंबर 1, और डोमेन एंड रेंज क्या है? या कोडोमेन कह लो आप, कोडोमेन आर फाइनाइट डायमेंशनल स्पेसेस हैं, आर फाइनाइट डायमेंशनल. तो बेटा डेफिनेटली क्या हो जाएगा? वो मैपिंग, देयरफॉर द मैपिंग फाई, देयरफॉर जो मैपिंग पाई है वो हो जाएगी ऑन टू. और जब मैपिंग पाई ऑन टू हो गई, इट इंप्लाइज
पाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स डबल स्टार। मतलब ये पूरा का पूरा काम, ये पूरे एलिमेंट्स किसका काम कर रहे हैं, पाई ऑफ एक्स। So these are the two examples of reflexive spaces. One is we have done r raised to power n, and the other is the finite dimensional space is always the reflexive. That's all.